Hey guys, welcome back to another video. And well, I guess that you guys must have noticed the sheer volume of anime that's been coming out recently. And ये ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात तो है नहीं कि जो मांगा रिलीज होते होंगे वो obviously इससे 10 गुना ज़्यादा होंगे. So picking something to read out of this is going to be really tough. And even if you do end up selecting something, आप कुछ predict नहीं कर सकते कि आगे जाके ये story ये quality maintain कर पाएगी भी या नहीं. So reading something that's complete and hundreds of people can guarantee that it's good is the safest way to go. So yeah, आज हम ऐसे ही मांगास को रेकमेंड करने वाले हैं जो कि टॉप टियर है. आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और ये करने के लिए हमारे साथ में है विनायक फ्रॉम विनेटोस्कोप. विनेटोस्कोप भी हमारे जैसा ही एक एनिमे फोकस चैनल है एंड ही डज रियली गुड वीडियोस, प्रोबेबली बेटर देन अस. यू शुड चेक हिम आउट इफ यू हैवंट ऑलरेडी. एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो उसके चैनल पे है. सो आफ्टर यू फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू चेक दैट आउट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू इट. 20th Century Boys नाओकी उरासावा ने लिखा हुआ एक मांगा है. एंड FYI, ये वही महान आदमी है जिसने मॉन्स्टर जैसे मांगा को लिखा है. मॉन्स्टर मेरे टॉप 3 मांगास में से एक है एंड 20th Century Boys पढ़ने के बाद वो भी मेरे टॉप मांगास में आ चुका है. सो बेसिकली जस्ट लाइक मॉन्स्टर, ये एक साइकोलॉजिकल मांगा है. एंड द थिंग विद इट इज इट हैज नो प्लॉट होल्स. Like, despite not having any sort of otherworldly powers, this manga makes use of the most natural setting and builds upon to it. Now talking about the overall structure of the manga, unlike Monster, which has a fairly linear story with little to no flashbacks, इस manga में time आगे पीछे होता रहता है. At one instance, you're in the past. In the next, you're in the future. The story and its details get unfolded as we progress through the manga, like the events of the boy's childhood are being repeated in the future because of the actions of the antagonist. The characters mesh very well with the story. The characters of the past and the future, they both work in cohesion and they do not overlap with one another. More so, the antagonist of the story is an absolute marvel. मैं इस character को अपने top 5 characters में ज़रूर रखूँगा. I mean, the genius that he possesses is unparalleled. The way he drives the story in his favor, the mind clashes, it's just amazing. I would like to say that I thoroughly enjoyed this manga and it's going in one of the top mangas that I've ever read. Lastly, if I have to consider कि इस manga को किस studio ने animate करना चाहिए, although the possibility of that happening is very low, I will suggest Madhouse. क्योंकि I think that it's the only studio that would nail the realism and the art style of this manga, just like it did with Monster, or for that instance, Perfect Blue. The next manga is Dad, the Beard Gorilla and I. ये एक बड़ी ही प्यारी सी slice of life / comedy story है and I am really confused and surprised at the same time कि how this manga worked so well for me. To be honest, I am not a very big fan of slice of life genre. मतलब मैं psychological thriller और action stories को ज़्यादा enjoy करता हूँ. But this manga played really well with my priorities. मतलब अब मैं कह सकता हूँ कि I like slice of life genre अगर मुझे ऐसी स्टोरी पढ़ने को मिले तो. मतलब यस, इस मांगा की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी है. इस कहानी के अंदर आपको कोई गोरिल्ला देखने को नहीं मिलेगा. इट इज अ मेटाफर. इस मांगा की कहानी है मेनली अबाउट द डेली लाइफ्स ऑफ 3 कैरेक्टर्स, क्योंकि एक स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे यही करता है. और वो 3 कैरेक्टर्स हैं मिचिरो, एक 6 साल की बच्ची, फादर ऑफ मिचिरो सोइची, और सोइची का यंगर ब्रदर क्योजी, और तीसरा कैरेक्टर है सोइची का ही छोटा भाई कोइजी. एंड यस, कोइजी इज द बियर्ड गोरिल्ला. सो मिचिरो की मॉम की डेथ हो चुकी है इन अ कार एक्सीडेंट, इसलिए सोइची डिसाइड्स टू कॉल हिज यंगर ब्रदर ताकि मिचिरो का ख्याल भी कोई रख सके. और इसके बाद स्टार्ट होती है अ वेरी फन स्टोरी अबाउट दीज 3 कैरेक्टर्स. एंड द बेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस मांगा इज द केमिस्ट्री बिटवीन कोइजी एंड मिचिरो, और आपस में उन तीनों का रिलेशन कैसे इवॉल्व होता है साथ रहते रहते, वही सब इस मांगा की स्टोरी है. दिस मांगा हैज अ वेरी गुड स्टोरी एंड अ वेरी गुड सेट ऑफ कैरेक्टर्स, तो और क्या चाहिए. दिस मांगा इज अ ट्रू जेम. और जहां तक इसकी एनीमे अडेप्टेशन की बात आती है, अगर आपने ये एनीमे देखा है उजाकी-chan वांट्स टू हैंग आउट, तो इस मांगा की जो आर्ट स्टाइल है और कैरेक्टर डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है इस एनीमे से. सो इन माय ओपिनियन जो एनजी स्टूडियोज है या फिर एनगी स्टूडियोज है, उन्हीं को इस मांगा का एनीमे अडेप्टेशन बनाना चाहिए, क्योंकि यू नो सिमिलैरिटीज. I sold my life for 10,000 yen. Well, where do I start with this manga? ये एक ऐसी मांगा है जो तुम्हें रुला देगी. इसे पढ़ने के बाद तुम कुछ दिनों के लिए उदास रहोगे एंड अपनी खुद की जिंदगी के बारे में सोचोगे. ये एक छोटी सी 18 चैप्टर्स की मांगा है
जिसका मेन कैरेक्टर है कुसुनोकी, जो एक साधारण सा जापानीज 20 साल का लड़का है। वो अपनी जिंदगी से उदास है एंड उसका दिवाला भी निकल चुका है। एक दिन उसे एक सस्पिशियस ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली लोगों की हेल्थ या फिर उनकी लाइफ खरीदती है। कुसुनोकी को वैसे भी अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो अपनी सारी लाइफ बेच देता है फॉर 30,000 येन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 21,000 रुपीज। उसकी जिंदगी बेचने के बाद उसके पास जीने के लिए 3 महीने होते हैं एंड इस समय के दौरान उस पर नजर रखने के लिए एक 20 साल की लड़की मियागी को अपॉइंट किया जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये घिसी पिटी बॉलीवुड लव स्टोरी है तो आप गलत हो। ये बिल्कुल भी उस तरह की कहानी नहीं है जहाँ लड़का लड़की मिलते हैं एंड प्यार होता है, ना, बिल्कुल भी नहीं। कहानी में कुसुनोकी मियागी के साथ अपनी लाइफ की आखिरी इच्छाएं पूरी करने निकलता है। वो अपनी लाइफ में जो कुछ गलत हुआ है उसको सुधारने की कोशिश करता है। आई रियली रिकमेंड यू टू रीड दिस मांगा because it's one of those few stories that represent the sadder aspects of life, like Koe no Katachi, also known as Silent Voice. Once things go wrong, they keep on going wrong. Only we can change that. So please go and read it and feel the emotions in it. A small warning though, this manga isn't for someone who is weak-hearted. Such people should read at their own risk. And now, if this manga ever gets adapted, judging by the art style and the way the story unfolds, I would definitely go with Kyoto Animation. Because as I mentioned earlier, the way it deals with human emotions is impeccable. Like, तुम्हें रुलाकर ही छोड़ेगा ये। Our next manga is Watashitachi no Shiawase na Jikan, which means our happy hours in English. Okay, so disclaimer before moving on, this manga has one hell of a depressing story. तो अगर आपका किसी दिन मूड अच्छा ना हो या फिर आप काफी सैड फील कर रहे हो तो don't read this manga on that day, क्योंकि ये मांगा आपकी उस फीलिंग को और ज्यादा इंक्रीज कर देगी। This manga is really depressing, ट्रैजिक एंड डार्क। लेकिन बात ऐसी है कि इस मांगा की जो स्टोरी है वो जितनी ज्यादा डिप्रेसिंग और ट्रैजिक है उतनी ही ज्यादा बढ़िया भी है। द राइटिंग ऑफ दिस मांगा इज वेरी गुड एंड ऑल्सो टचिंग एंड ऑल्सो देयर आर मोर फैक्टर्स व्हिच मेक्स दिस मांगा अ मास्टरपीस। तो इस मांगा की स्टोरी कुछ यूं है कि एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट होती है और उसका नाम होता है जूरी, और जूरी इज इन लेट 20s एंड शी इज डिप्रेस्ड फॉर सम रीजन जो आपको मांगा पढ़ के पता चलेगा, और वो अभी तक 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। तो एक दिन जूरी अपनी आंट के साथ प्रिजन जाती है बिकॉज उसकी आंट जो है वो एक नन है, और यू नो नन्स का काम थोड़ा बहुत होता है ना कि क्रिमिनल्स के पास जाके उनको रिडेम्पशन का पाथ दिखाया जाए, उनको कम गिल्टी फील करवाया जाए। तो इन सब चीजों के चलते हुए जूरी मीट्स अ मैन जिसका नाम होता है यू, एंड यू हैज किल्ड 3 पीपल और उसको डेथ सेंटेंस मिल चुका है, और उसकी भी बैक स्टोरी काफी ज्यादा ट्रैजिक और डिप्रेसिंग है। एंड जस्ट लाइक जूरी वो भी काफी बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, लेकिन जिस दिन ये लोग मिलते हैं पहली बार उस मोमेंट से इन दोनों की ही लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, और इसी के बारे में इस मांगा की स्टोरी है। वेल, इस मांगा से मुझे वही सेम वाइब आती है यू नो गिल्ट एंड रिडेम्पशन वाली जो की आई थी अ साइलेंट वॉइस से, और इस मांगा के अंदर सिर्फ 8 चैप्टर हैं। तो अगर इसका कभी एनीमे अडेप्टेशन होता है तो वो एक एनीमे मूवी की तरह होगा, नॉट अ सीरीज। एंड आई वुड लाइक टू सी क्योतो एनिमेशन अडेप्टिंग दिस मांगा, क्योंकि उन्होंने इसी टाइप के काफी अच्छे एनीमे और बनाए हैं जैसे क्लैनेड और क्लैनेड आफ्टर स्टोरी। तो इन माय ओपिनियन वो लोग बहुत ही अच्छी चॉइस रहेंगे। सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड। आपको बाकी के रिकमेंडेशंस विनायक के चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक फॉर विच कैन बी फाउंड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक इट आउट।